اس لیے کہ یہ اپنے اپنے فیلڈ کا، اپنے اپنے سبجیکٹ کا اور اپنے اپنے میدان کا جو ہے، دیکھیے آپ کے پہلو میں یہ ضیاء بھائی بیٹھی ہوئی ہیں، لکھنؤ میں کوئی پتہ ان کے بغیر نہیں کھڑکتا، مگر ان کو آپ یہاں تک لے کے آئے۔ آپ ادھر دیکھیے، یہ ہمارے یہاں سے شروع کرتے ہیں شوکت بھارتی صاحب، یہ اس چینل کے پروپرائٹر کے نگراں اور سربراہ، پورا ایک چینل، پرائیویٹ چینل، اور ان کی کئی بکس ہیں، کئی بکس کے آتھر ہیں۔ یہ ہمارے وقار سلطان پوری صاحب نے کتنا پیارا پتہ دیکھیے پڑھا۔ امیر حسن عامر صاحب، پوری دنیا میں جو نوحے پڑھے جاتے ہیں، دیکھیے شام والوں نے امام حسین کو بھارت نہیں جانے دیا تھا، آج بھارت والوں کو شام نہیں آنے دینا چاہتے، مگر آپ نے ایسا کیا دیکھیے۔ تو امام حسین کی خواہش کا نام بھارت ہے۔ یہ انہوں نے بہت نوحے ایسے پڑھے ہیں، پوری دنیا میں یہ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر نایاب ہلوری صاحب، جتنا ہندوستان میں پیار کیا جاتا ہے اس سے زیادہ، بلکہ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ سرحد کے اس پار زیادہ چاہے جاتے ہیں یا اس پار زیادہ چاہے جاتے ہیں۔ یہ جناب نایاب ہلوری صاحب، یہ نایاب بلیاوی صاحب، ان کی مذہبی شاعری میں بھی ہمارے بھارت کی مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو جو ہے وہ آپ کو محسوس ہوگی، اس میں پوری دیش بھکتی نظر آئے گی۔ یہ دیکھیے مولانا میثم زیدی صاحب، یہ ہمارے جو ممبر پہ ذاکری کی جاتی ہے، اس میں پورا لکھنؤ جو ہے نا، اس کی سماعت میں، اس کے کام میں یہ عرض بول دیتے ہیں، اور پورا لکھنؤ ان کی آواز پہ ٹوٹا ہوا چلا، سروں کا سیلاب ایک چلا آتا ہے، تو یہ سمجھیے وہاں سے بولنا ہے۔ اور یہ ہمارے عزادار اعظمی صاحب ہیں، یہ دیکھیے بہت کم وقت میں بہت اچھے شعر سناتے ہیں، یہ ان کی کوالٹی ہے۔ یہ ہمارے کلیم اصغر صاحب نوری صاحب، جناب اختر لکھنوی صاحب، جناب اختر لکھنوی صاحب، بہترین آواز، ابھی دیکھیے گا آپ دو شعر سنائیں کتنے اچھے، جناب اختر لکھنوی، جناب فرید مصطفیٰ صاحب، بہت اچھے اور خاندانی، جو ہمارے یہاں کویتا کا جو ایک پورا گھرانہ چلا آ رہا ہے، وہ ان سنسکاروں کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ فرید مصطفیٰ صاحب والد صاحب کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ ہمارے اظہار بھائی لکھنؤ کے جو غفران مآب خاندان، یہ جو قلب عابد صاحب، اب وہ بیچ میں الگ الگ شاخیں، مگر اس کے پورے ورثہ موجود ہیں ہمارے۔ آصف بھائی، یہ دیکھیے بہت نمائندہ نام ہمارے لکھنؤ کی سرزمین کا، اور پورے اودھ سے، فیض آباد سے، دیکھیے فیض آباد سے جو ہے اودھ لکھنؤ گیا تھا نا، یہ ہمارے یاسوف بھائی اور پاشا صاحب، یہ سب پورا وہاں کا ایک پورا، کاشف صاحب کا کرولی کے، یہ بہترین نوحے خوان، پوری دنیا میں جہاں جہاں اردو اسپیکنگ میں لوگ نوحے سنتے ہیں، اردو اسپیکنگ حلقے میں، وہاں پہ آپ کے نوحے سنے جاتے ہیں۔ اور حاضر کر رہا ہوں، دیکھیے گا جی، ایک بار دور پڑھ دیں محمد یہ مطلع شہزادے علی اصغر کے لیے، اور اس کے بعد ایک پیغام پوری دنیا کے لیے۔ لافتہ کے بھول سے جب سامنا ہو جائے گا، لافتہ کے بھول سے جب سامنا ہو جائے گا، ہرملا تو ایک ہنسی میں لاپتہ، اور حضرات آج کی اس محفل میں، آج کی اس مجلس میں آپ تمام حضرات کی جانب سے پورے عالم اسلام کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس، راجیو شرما جی کی موجودگی، مولانا میثم زیدی صاحب کی موجودگی، قاعدہ شبیر کا دنیا سے پڑھواتے رہو، یہ مجلسیں، یہ ماتم، یہ عزاداری، یہ سب قاعدہ ہے مدرسہ شبیر، قاعدہ شبیر کا دنیا سے پڑھواتے رہو، ورنہ یہ سارا جہاں القاعدہ
गुजारिश करूंगा जनाब अज़ादार आज़मी साहब से तशरीफ लाएं। जनाब अज़ादार आज़मी साहब नारे हैदरी। एक मसला आप जन्नत में दूर तक ना हमें अजनबी मिले, हमें अजनबी मिले। जन्नत में दूर तक ना हमें अजनबी मिले, हमें अजनबी मिले। मजलिस में जो मिले थे वही आदमी मिले, वही आदमी मजलिस में जो मिले वही आदमी मिले, वही शर्मा जी आप भी आ गए। मजलिस में जो मिले थे वही आदमी मिले, वही आदमी मिले। और मरने के बाद भी तो मैं तन्हा नहीं रहा, मैं तन्हा नहीं रहा। मरने के बाद भी तो मैं तन्हा नहीं रहा, मैं तन्हा नहीं रहा। रुखसत हुए जो दोस्त लहद में अली मिले। जनाब अमीर हसन आमिर साहब नारे हैदरी। हम लोग पर ये इल्जाम है कि जाली मदद कहते हैं, सलाम नहीं करते। बेशक हम जाली मदद कहते हैं, सलाम किसे नहीं करते हैं। समाज फरमाएं। किसी शरफ ना किसी एहतराम के काबिल, किसी शरफ ना किसी एहतराम के काबिल, न गुफ्तगू न किसी और काम के काबिल। अली के जिक्र पे जो मुंह बिगाड़ लेता है, अली के जिक्र पे जो मुंह बिगाड़ लेता है, उसे समझते नहीं हम सलाम। अपनी अंजुमन की तरफ से राजीव साहब के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने यहाँ पर ज़ायरीन को आने में वीज़ा दे के जो मदद की है, इसका सिला उस दर से इनको जरूर मिलेगा। किसी को मायूस नहीं किया जा सकता। बस 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 और एक बहुत छोटी सी प्रेयर आपके सामने। आपने भी स्कूल में पढ़ी होगी, मैंने भी स्कूल में पढ़ी। वो प्रेयर थी कि जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, और आखिर में था कि जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसी के आगे शीश नवाएं। इस प्रेयर को पढ़ तो सबने लिया था। आम हालात में ईश्वर की प्रार्थना करना, उसके आगे शीश नवाना आसान है, लेकिन जब आदमी चारों तरफ से दुश्मनों की फौज में घिरा हो, छोटे छोटे बच्चे अलतश अलतश कर रहे हो, किसी न किसी की लाश को लेकर आना हो, उस वक्त सजदे में सर रखकर ये कह देना, हे ईश्वर, जिसने तुझे प्राप्त कर लिया उसने क्या खोया, और जिसने तुझे खो दिया उसने क्या पाया। ये संदेश किसका है? उस ईश्वर के सच्चे सिपाही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है। और उस संदेश को अपने हाथों से पेश कर रहे हैं जनाब राजीव शर्मा साहब को। प्लीज कबूल कीजिए इसको। नारे सलवात। फिजिकली और क्रिटिकली आपने सुना दिया। मैं गुजारिश कर रहा हूं जनाब क्या कहना जनाब शौकत साहब। दश्ते एहसास से ये कौन बुलाता है मुझे? कोई तो है कि जो खींचे लिए जाता है मुझे। जब पहुंचती है मेरी फिक्र किसी नेज़े तक, एक ही सर है जो कुरान सुनाता है। ये चार मिसाल जायसी के पढ़े थे ताकि हमारी बहनों की भी नुमाइंदगी हो जाए। हमारे गवर्नर सिकंदर अजीज साहब की बहन है वो। हजरात, यहाँ मैं भी ज़रूरी समझता हूँ कि शर्मा साहब का शुक्रिया अदा किया जाए।
اور اس فرش پہ آنے کے لیے، اور یہ بہت بڑی ہے کہ انہوں نے یہاں عزاداران امام حسین کو ویزا دے کر یہاں بلایا۔ ایک اور دعا کرتے ہیں کہ جہاں وہ اس فرش پر تمام دنیا کے شیعوں، ہندوستان کے شیعوں کو بلانے میں مدد کرتے ہیں، وہیں وہ یہاں جتنے ظالم مولا کے دشمن رہتے ہیں ان کے لیے ایک وارنٹ اور کٹوائیں دیش نکالے گا تاکہ وہ یہاں سے چلے جائیں۔ اور یہاں پر شرما صاحب موجود ہیں، ان کی زبان سے کئی بار یا علی نکلا، وہ ان کے علی والے ہونے کا ثبوت ہے، اور آنسو ان کے حسینی ہونے کا ثبوت ہے۔ پاکستان سے ہمارے عارف صاحب یہاں ان حضرات کے چہرے کا اطمینان بتا رہا ہے کہ یہ اپنے بھائیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اسی دلیل کے لیے ایک شعر پیش کرتا ہوں، دونوں اور یہاں جتنے لوگ ہیں سب لوگ دوسرے ملکوں سے آئے ہیں، اب شعر پیش کرتا ہوں کہ علی کے چاہنے والے ہیں ہر علاقے میں۔ صرف ایک شعر مجھے پیش کرنا ہے، سن لیں آپ حضرات قریب ہو کر کہ علی کے چاہنے والے ہیں، اپنے اپنے احساسات سامنے رکھ کر شعر سنیں کہ علی کے چاہنے والے ہیں ہر علاقے میں، علی کے چاہنے والے ہیں ہر علاقے میں، حسین والا کہیں بے وطن نہیں ہوتا۔ علی کے چاہنے والے ہیں ہر علاقے میں، حسین والا کہیں بے وطن نہیں ہوتا۔ علی کے چاہنے والے ہیں ہر علاقے میں، حسین والا کہیں بے وطن نہیں ہوتا۔ میں گزارش کر رہا ہوں محترم جناب اختر لکھنوی صاحب سے جناب آپ بہترین کلام اور بہترین آواز سنیں گے، اور بلکہ مناجات میں اور منقبت میں اور بہت سارے تازیہ ہندو اٹھائے کلمہ کو بدعت کرے، پھول مردہ ہے یہاں پر زندگی پتھر میں ہے۔ بابا سے بلند سبلا دیجیے حضرات۔ ایک مطلب شیخ فاضل احمد صاحب کیونکہ یہاں پہ سامعین پاکستان کے ہی بیٹھے ہوئے سید سجاد کے حوالے سے کہ پاؤں کوفے کی زمین پر جب پڑا سجاد کا، کہ پاؤں کوفے کی زمین پر جب پڑا سجاد کا، کہ پاؤں کوفے کی زمین پر جب پڑا سجاد کا، کفر کی سرکار تھی سکہ چلا سجاد کا، کفر کی سرکار تھی سکہ چلا سجاد کا۔ شعر دیکھیں کہ آسمانوں کی بلندی چل رہی ہے ساتھ ساتھ، دیکھیں یہ بھائی کہ آسمانوں کی بلندی چل رہی ہے ساتھ ساتھ، کہ آسمانوں کی بلندی چل رہی ہے ساتھ ساتھ، ارے جا رہا ہوں ڈھونڈنے میں نقش پاس میں گزارش کر رہا ہوں محترم جناب اعجاز جہان آبادی صاحب سے جو تشریف لائیں اور بار پیش کریں۔ جناب اعجاز جہان آبادی صاحب، نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد صلوات، محمد و آل محمد، سلامت ہے چاند سورج تو بسلامت ہے، اصل میں روشنی حسین کی ہے۔ یہ ہمارے مہندر سنگھ اشک جی کا یہ شعر تھا جو میں نے پڑھا۔ جناب فرید مصطفیٰ صاحب، نعرہ حیدری۔ دو شعر ایک سلام کے گونگا یزید ہو گیا اپنے ہی قصر میں،
शहीद हो गया अपने ही कसर में, आबिद तुम्हारे जोरे खिताबत के सामने, आबिद तुम्हारे जोरे खिताबत के सामने, ओ भारी पड़ेगा वज़न में सजदा हुसैन का, भारी पड़ेगा वज़न में सजदा हुसैन का, नबियों की उम्र भर की इबादत के सामने। और अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ इलाहाबाद के संगम से आए हुए हमारे शायर जनाब नायाब कलियावी साहब, जनाब और हमारे चेयरमैन जनाब रिजवान मेहदी बबलू साहब की फरमाइश है। इनकी एक नज्म है, कविता है और बिल्कुल उसमें देशभक्ति भी है और इमाम हुसैन की श्रद्धांजलि भी है, हुसैन और भारत इस संबंध को लेकर उन्होंने कविता की है। कविता तो बहुत लंबी है लेकिन उसके 3 बंद पढ़ लें ताकि उसके बाद मौलाना साहब आवाज बुलंद आ रहे अल्लामा इकबाल ने फरमाया था सारे जान से अच्छा है दोस्त हमारा, उसकी उन्होंने वजह बताई थी कि इसका पर्वत ऊंचा है, इसकी गोद में हजारों नदियां हैं, लेकिन हिंदुस्तान के खूबसूरत होने की और भी वजह पेश करना चाहता हूँ। अज़ा खाने है जिसकी शान, ये मेरा मुल्क मेरा ईमान, अज़ा खाने है जिसकी शान, ये मेरा मुल्क मेरा ईमान, मेरे मौला की ख्वाहिश का नाम है हिंदुस्तान। मुल्क मेरा ईमान, अज़ा खाने शेर मुलामे है। चांद मुहर्रम का जब निकला गाँव हुए सारे आबाद, गली गली से शोर उठा के नस्ल यजीदी जब निकला गाँव हुए सारे आबाद, गली गली से शोर उठा के नस्ल यजीदी हिंदुओं के लब पर है शबीर हमारा जिंदाबाद, हिंदुओं के लब पर है शबीर हमारा जिंदाबाद, दुनिया के हर मुल्क से शायद हिंद में है हम सब मेरा तिरंगा गाजी के परचम पे है मेरा ईमान। अरे खुल के पढ़िए अपने पढ़िए पूरी पढ़िए, कुछ तकलीफ ना ये नज़्म आप पूरी पढ़िएगा, पूरी पढ़िएगा, इसके लिए छूट है आपको अपने अंदाज में। कर्नाटक
उत्तराखंड गुजरात मराठा तमिल हो या के हो आसाम यूपी एमपी कर्नाटक बिहार हो या के हो आसाम यूपी एमपी कर्नाटक गुजरात हो या के हो आसाम इन सब की किस्मत की जबी पर लिखा है शबीर का नाम इन सब की किस्मत की जबी पर लिखा है शबीर का नाम गंगा जमुना की है सबीले गंगा जमुना की है सबीले कृष्ण लबों की याद में आम उठता है बंगाल से बादल उठता है बंगाल से बादल लिए हुए अश्कों का जाम करबला की दश्त बला की याद में तपता है वो राजस्थान नज़ा खाने है जिसकी शान ये मेरा मुल्क मेरा ईमान अज़ा खाने है जिसकी शान मेरे मौला की ख्वाहिश का नाम है हिंदुस्तान मेरा मुल्क मेरा ईमान अज़ा खाने है जिसकी शान से पेश करना चाहता हूँ कौमी एकजहती की शामें मुनाकिद होती हैं लेकिन कौमी एकजहती का इससे बड़ा प्लेटफार्म नहीं मिल सकता दुनिया में पेश करना चाहता हूँ मुलाज़िम मस्जिद के जो एहतराम की एक हद पर रुक जाता है मस्जिद के जो एहतराम की एक हद पर देखिए कुछ परेशान है एक दुरूद पर ध्यान दो अज़ा खाने है जिसकी शान मेरे मौला की ख्वाहिश का नाम है हिंदुस्तान अज़ा खाने है जिसकी शान मस्जिद के जो एहतराम की एक हद पर रुक जाता है हिंदुओं लेकिन ये सच है फर्श अज़ा पर आता है मस्जिद के जो एहतराम की एक हद पर रुक जाता है हिंदुओं लेकिन ये सच है फर्श अज़ा पर आता है कौमी एकजहती का हुनर ये फर्श अज़ा सिखलाता है कौमी एकजहती का हुनर ये फर्श अज़ा सिखलाता है सिख ईसाई दिल की मुरादें फर्श अज़ा से पाता है सिख ईसाई दिल की मुरादें फर्श अज़ा से पाता है फर्श अज़ा पर पर आने से घबराता है मस्जिद के जो एक हद पर रुक जाता है हिंदू लेकिन ये सच है फर्श अज़ा पर आता है कौमी एकजहती का हुनर ये फर्श अज़ा सिखलाता है कौमी एकजहती का हुनर ये फर्श अज़ा सिखलाता है सिख ईसाई दिल की मुरादें फर्श अज़ा से पाता है आने से घबराता है फर्श अज़ा पर आने से घबराता है शैतान जिसकी शान मेरा मुल्क मेरा ईमान अज़ा खाने है जिसकी शान
बैत का दुश्मन है वही वतन का गद्दार हो सकता है, वही वतन का गद्दार हो सकता है। मुल्क कौन लोग तोड़ना चाहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान। पेश करना चाहता हूँ, अगर ये मिसरे शहजादी की बारगाह में आपकी इंसाफ पसंद समातों तक पहुँचते हैं तो मैं आपके लिए आपसे इस ये जो माहौल और हम जो यहाँ तक आए हैं, जिनकी काविशें हैं, उनके लिए तमामी हज़रात दुआ फरमा दें। मुनादा फरमाए खास तौर से, मुल्क है मेरा सबसे प्यारा, मुल्क से है हम सबको प्यार। मुल्क है दलील भाई, मुल्क है मेरा सबसे प्यारा, मुल्क से है हम सबको प्यार, इसकी खातिर जीना मरना असल हुसैनी है किरदार। मुल्क है मेरा सबसे प्यारा। अगर मिसरे दोस्तों पहुंचता है आज़ादारों, तो मैं चाहता हूं कि आप तमामी शोरा और ज़ाकिरीन के लिए दुआ फरमाते हैं। जो लोग आए हैं, शहजादी उनकी आमद को कबूल फरमाए। मुल्क है मेरा सबसे प्यारा, मुल्क से है हम सबको प्यार, इसकी खातिर जीना मरना असल हुसैनी है किरदार। खुदकुश हमले करते हैं जो मुल्क के हैं वो सब खुदकुश हमले करते हैं जो मुल्क के हैं वो सब गद्दार। घर ज़हरा का जिसने जलाया, घर ज़हरा का जिसने जलाया, उसके हैं ये रिश्ते। सबसे प्यारा मुल्क से है हम सबको इसकी खातिर जीना मरना असल हुसैनी है किरदार। खुदकुश हमले करते हैं जो, खुदकुश हमले करते हैं जो मुल्क के हैं वो सब गद्दार। घर ज़हरा का जिसने जलाया, उसके हैं ये वतन का जो दुश्मन है वही अहले बैत का दुश्मन है, और फिर उसका खून नजिस है। मुल्क है मेरा सबसे प्यारा, मुल्क से है हम सबको वो प्यार, इसकी खातिर असल हुसैनी है किरदार। खुद
कुछ हमले करते हैं जो मुल्क के हैं वो सब गद्दार। घर जरा का जिसने जलाया उसके हैं ये रिश्तेदार। ऐसे मुनाफिक माँ से वाकिफ, मुनाफिक माँ से वाकिफ बाप से है मैं बहुत ही अदब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ राजू शर्मा जी से कि दो शब्द जरूर इस वक्त मेरा बचपन जयपुर में निकला है और अल्हम्दुलिल्लाह जयपुर हिंदुस्तान के उन चंद गिने चुने शहरों में है जहाँ पे अभी भी गंगा जमुना संस्कृति भगवान की जैसे बची हुई है। तो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, मैं 6 या 7 साल का हुआ करता था तो ताजिए निकलते थे मुहर्रम के। तो हमारी नानी हमें सिक्के देके भेजा करती थी और दूध कटोरी में देके भेजा करती थी कि आप जाएंगे और वहां पे सर दबा के आएंगे। हमें पता नहीं होता था कि ये क्यों होता है ऐसे। हम देखते थे ताजिए, उसके बाद करते थे, जो खा जाता था वो वापस आ जाते थे। थोड़ा बड़े हुए तो पिताजी हमें साथ लेके, और कत्ल की रात बोलते हैं उसे हम जयपुर में, कि सारे ताजिए लेके आते हैं, एक जगह जमा होते हैं और कत्ल की रात मिलाते हैं। तो पिताजी के साथ वहां पे जाते थे तो हम देखते थे कि माता मन रहा है, लेकिन तब भी समझ भी नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था। फिर थोड़ा सा और बड़े हुए तो पहले बार पता हुआ करबला किसे कहते हैं। पहले बार जैसे मुझे पता पड़ा करबला में क्या हुआ, उस वक्त से लेके आज तक मैं चैन से तो बैठा नहीं हूं। ये कहने की बात नहीं है, महसूस करने की है कि जो इंसान है, अगर इंसान है तो वो करबला की बात सुन के रोएगा। और वो इंसान ही नहीं है, उससे अलीम की बात करनी है, न इल्म की बात करनी है, न दुनिया की बात करनी है। आपको दिन रात चौकी तरक्की मिले। मैं यहाँ की मजलिसों में इंशाल्लाह, मेरे दोस्त हैं, आरिफ भाई हैं, नकी भाई हैं, इन्होंने बुलाया और मैं बैठा, और मैं बता नहीं सकता किस हद तक मैं उस पूरे दास्तान से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ आज भी। ऐसे लगता नहीं है कि बहुत पुरानी बात है, ऐसा लग रहा है कि अभी हो रहा है, आंखों के सामने हो रहा है, वो मंजर सामने आता है। जब भी सुनता हूँ तो ऐसा लगता है नहीं अभी की बात है, पुरानी बात नहीं है। और इस वक्त वाकई दुनिया में हालात ऐसे हो चुके हैं, सीरिया के हालात ऐसे हो चुके हैं कि वही मंजर अल्हम्दुलिल्लाह शायद हम लोग दोबारा अपनी आंखों से देखेंगे। अली के जमाने से लेके इस जमाने तक एक ही जिम्मेदारी रही है उन लोगों की जिन्होंने ये समझा है कि दीन उन्हें समझ में आया है, और वो है शहादत की। शहीद होने के लिए तो तैयार है, ये समझ लीजिए कि दीन सिर्फ उसी का है और किसी का नहीं है। और शहीद सबसे पहले हुसैन हुए, और हुसैन की याद में मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूँ, इंशाअल्लाह दुआ सलाम करता हूँ, और आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जहाँ भी आप जाएं कम से कम इतना सबसे कहें कि हुसैन के झंडे के नीचे हम सब एक हैं, और हुसैन के झंडे के नीचे आगे हम तक तरक्की या हुसैन। देखिए ऐसा ये शब्दकोश से नहीं बोल रहे थे, ये दिल की धड़कनों को लुगत बना रहे थे। दिल की जबान दिल वालों के सामने बोली जाती है, और यहाँ दिमाग वमाग का कोई काम नहीं था, कोई मुनाफिकत की बात नहीं है, खुले दिल से बात हो रही थी। हम जो है वो मुनाफिकों की बस्ती में जरूर हैं, मगर मोमिनों में बैठे हुए हैं। ये अजीजों, हम शाम में जो है मुनाफिकत के रेगिस्तान में विलायत के गुलाब। आइए अजीजों, ये हमने कब कहा कि हमारी है करबला? हक बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला। तो यही बात कह रहे थे हमारे राजू शर्मा जी कि हक बात जो है उसी की करबला मालूम होती है। हम फिर एक बार शुक्रिया अदा करते हैं गुलामाना सैयदा ज़ैनब की जानिब से, और वही बात
कि हमारे आरिफ भाई जिस वक्त हमारे नायाब भाई मिसरा पढ़ रहे थे, मेरा तिरंगा गाजी के परचम पर कुर्बान, तो थोड़ा सा इनके माथे पे बल अब लाया था कि ये देशभक्ति की बात, लेकिन हमारे हिंदुस्तान का दामन बहुत चौड़ा है और दिल बहुत बड़ा है। ये जुमला हमारी तरफ से आ सकता है मगर हमारे किसी गैर मुस्लिम भाई की तरफ से नहीं आ सकता है। एक बार हमारी तरफ से जश्न में ये मिसरा आया था, ये जुमला आया था कि कैसे आप वो कर रहे हैं, इसमें जो हमारे देश के परचम का जो अपमान हो रहा है। मैंने कहा नहीं, हमारा हिंदुस्तान का दिल इतना बड़ा है कि हमारे तिरंगे के नीचे हिंदुस्तान बचा, अब्बास कलम के नीचे इंसान बचा। मैं गुजारिश कर रहा हूँ हिंदुस्तान लखनऊ से नुमाइंदगी करते हुए पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी दुनिया में अज़ादारी और ज़ाकरी के हवाले से करने वाले खतीब आले इमरान मौलाना सैयद हसन मुत्तकी मिसम जैदी साहब, जो सिर्फ मुकर्रिर और खतीब ही नहीं शायर भी हैं, लेकिन मैंने शायरों की श्रृंखला में इसलिए इनको आवाज़ नहीं दी थी कि चूंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा बाब में जाकिर होता है तो उसी में अगर ये मुनासिब समझेंगे तो शेर भी पढ़ देंगे। लेकिन अब ये इनकी ऐसी मंजिलत और अजमत है कि हम इनसे दरख्वास्त करते हैं कि तशरीफ लाएं और जो चाहें जिस तरीके से चाहें आवाज़ बुलंद आ रहे सलावत। आज की मजलिस के लिए मैंने सोचा तो कुछ और था, लेकिन बहरहाल जैसा माहौल क्रिएट हो गया उसके एतबार से चंद बातें आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करके तकरीर को तमाम कर दूँ। बेहतरीन अंदाज से आपने इस वक्त अपने मुल्क की नुमाइंदगी फरमाई, खुसूसियत से शुअरा कलाम ने, हमारे शौकत भारती साहब ने, हमारे कलकत्ते से आए हुए जनाब सलमान साहब ने, हमारे हसन अली साहब ने, दीगर हज़रात ने और डॉक्टर निगर जलालपुरी साहब ने, बारह अज़ीज़ों हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तमाम हज़रात यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, मुख्तलिफ़ शहरों से आए हुए लोग बैठे हुए हैं, हमारे राजीव शर्मा जी बैठे हुए हैं। एक जुमला कहने को जी चाहता है कि यहाँ जितने बैठे हुए हैं वो सब भाई हैं। अब ये कैसे भाई हैं? जाहिर सी बात है कि कुछ तो वो होते हैं जो सगे भाई होते हैं, जो एक माँ और एक बाप की औलाद है। तो ये जितने हज़रात यहाँ बैठे हुए हैं ये एक माँ या एक बाप की औलाद नहीं है। तो फिर ये कैसे भाई हैं? कि कुछ रिश्ते के भाई होते हैं। अब वो रिश्ते के भाई क्या होते हैं? कि ये चचाजाद भाई हैं, ये मामूजाद भाई हैं, ये तायाजाद भाई हैं, ये खालाजाद भाई हैं, ये फूफीजाद भाई हैं। ठीक है, खुदा के लिए मेरे जुमले को रायगा ना जाने दीजिएगा। इस वक्त जो हज़रात बैठे हुए हैं, चाहे वो पाकिस्तान से आए हों या हिंदुस्तान से, करबला के मैदान में मुकम्मल इस्लाम की हिफाजत की है। बहुत तवज्जो आप हज़रात की चाहता हूँ।
आप मुझे बताएं और सोच समझ के बताएं कि एक 57 बरस के बूढ़े शख्स के हाथों पर उसके 6 महीने के बच्चे का जनाजा है, और कीजिएगा 6 महीने के बच्चे का जनाजा है। अभी मसाइब नहीं पढ़ा हूं, सुनिएगा 6 महीने के बच्चे का जनाजा है, हाथों में 6 महीने के बच्चे का खून है, बच्चे को तीर से शोभा से शहीद किया जा चुका है। और कर रहे हैं, बच्चे को तीर से शोभा से शहीद किया जा चुका है, 3 दिन का प्यासा बच्चा शहीद हो चुका है। बाप ने चिल्लू में खून लिया, चाहा कि जमीन की तरफ फेंके तो जमीन ने आवाज दी कि अगर ये खून इधर आ गया तो एक दाना अनाज का नहीं उगेगा, चाहा कि आसमान की जानिब फेंके तो आसमान ने आवाज दी कि ये खून इधर आ गया तो एक कतरा पानी का नहीं बरसेगा। कसम खुदा की दुनिया का कोई और पाप होता तो आधा खून जमीन की तरफ फेंकता, आधा खून आसमान की तरफ फेंकता। जब मेरा बच्चा भूखा प्यासा मर गया तो सारी दुनिया भूखी मर जाए, सारी दुनिया प्यासी मर जाए। सारे प्यारी का एहसान है कि उस खून को अपने चेहरे पर मरा, मेरा बच्चा भूखा प्यासा शहीद हो गया, भूखी ना रहे, प्यासी ना रहे। सारी दुनिया में इसकी कोई मिसाल नजर नहीं आएगी। और मैं अजीब चीज आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ, और तवज्जो आप बता की देखिए अजीजों, अमीर शाम, हाकिम शाम, इसी शाम का हाकिम। हालांकि मैं एक जुमला अक्सर कहा करता हूँ कि आप पढ़े लिखे लोग बैठे हुए माशाल्लाह शोरा बैठे हुए हैं, एक जुमला इनकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ मुझे हाकिम शाम तो कहना ही नहीं चाहिए, अमीर शाम तो कहना ही नहीं चाहिए, उसको अमीर शाम नहीं कहना चाहिए, मैं तो समझता हूँ फकीर शाम कहना चाहिए। आपने फकीर शाम कहना चाहिए। वो फकीर शाम बैठा हुआ है, आप समझ रहे हैं, माविया बैठा हुआ है, सामने जनाबे अदी इब्न हातिम बैठे हुए हैं। ये जनाबे अदी इब्न हातिम कौन है? हातिम ताई के बेटे जो रसूलुल्लाह के सहाबी थे। जनाबे अदी इब्न हातिम बैठे हुए हैं जिनके 3 बेटे जंग सिफ़ीन में मौला अली की नुसरत करते हुए शहीद हो चुके हैं। वो अदी इब्न हातिम बैठे हुए हैं। हाकिम शाम ने अदी इब्न हातिम से कहा कि तुम्हारे वो 3 बेटे कहाँ चले गए, बहुत दिन से दिखाई नहीं दे रहे हैं। अजीज़ो जनाब अदी इब्न हातिम ने कहा कि मेरे बेटे अपने इमाम की इताअत करते हुए शहीद हो गए। देखिए अजीज़ो वो सोच रहा था कि हम ये कहेंगे तो ये कुछ मौला अली के खिलाफ गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इन्होंने फरमाया कि मेरे 3 बेटे मौला अली की इताअत करते हुए शहीद हो गए। देखिए अजीज़ो अली वालों का किरदार क्या होना चाहिए? तो हाकिम शाम ने कहा कि अली ने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया, इसलिए कि अली ने अपने बेटों को बचा लिया और तुम्हारे बेटे शहीद हो गए, तुम्हारे बेटे शहीद हो गए, अली ने अपने बेटों को बचा लिया। कसम खुदा की सुनिएगा, रायगा ना जाने दीजिएगा। जनाब अदी इब्न हातिम ने जवाब दिया कि क्या बकता है, इंसाफ तो मैंने अली के साथ नहीं किया, इसलिए कि मैं जिंदा हूं और अली शहीद हो गए। मैं जिंदा हूं और अली शहीद हो गए। ये जनाब अदी इब्न हातिम बैठे हुए हैं। हाकिम शाम कहता है हाँ खुदा रहमत नाज़िल करे अबुल हसन के ऊपर। बड़े सादा मिजाज आदमी थे, लेकिन दुश्मन की तारीफ भी बड़े तर्ज के साथ होती है। उसने कहा बड़े सादा मिजाज आदमी थे अबुल हसन, जब दोस्तों के दरमियान बैठते थे तो उन्हीं के जैसे हो जाते थे। देखिए अजीजों, हम क्योंकि मोहब्बत के साथ ये जुमला सुन रहे हैं लिहाजा हम खुश हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन हाकिम शाम ने अदावत के साथ ये जुमला कहा था। तो ये साबित करना चाहता था कि मौला अली की शख्सियत में कोई स्पेशलिटी नहीं थी, कुछ ज्यादा कोई अहमियत वाली शख्सियत नहीं थी। जब दोस्तों के दरमियान बैठते थे, चाहने वालों के दरमियान, तो उन्हीं के जैसे हो जाते थे। एक मरतबा जनाब अदी इब्न हातिम कहते हैं क्या बकता है, क्या बकता है, ये मेरे मौला की इंकिसारी थी कि जब वो हमारे दरमियान बैठते थे तो जो हम खाते थे वही वो खाते थे। क्या सुनाया? जो हम खाते थे वही वो खाते थे। हम उनसे गुफ्तगू करते थे, हम उनसे सवाल पूछते हुए हिचकिचाते नहीं थे। लेकिन ये समझ ले कि जितने लोग अली के पहलू में बैठते थे, अली किसी बुलंद जगह पे नहीं बैठते थे कि हम नीचे बैठे वो ऊपर बैठे। अली बैठते तो हमारे साथ थे, लेकिन अली के पहलू में बैठने वाले तमाम हज़रात अली से खौफ सदा रहते थे। क्या सुनाया? अली से खौफ सदा रहते थे। तो हाकिम शाम कहता है ये कौन सी बड़ी बात है? सुनिएगा शौकत, ये कौन सी बड़ी बात है? मेरे दरबार में बैठने वाले भी मुझसे खौफ सदा रहते हैं। तो अली इब्न हातिम ने तारीखी जवाब दिया। अब आपको इख्तियार है चाहे जैसे सुने, ये समातों का इम्तिहान है कि अली इब्न हातिम
जुमला अर्ज करूं, कभी कभी लोग कहते हैं साहब आप कमाजनी करते हैं, आप जंजीर जनी करते हैं, आप अपना खून बहाते हैं, दूसरे आपको देख के डरते हैं। अरे भाई यही तो फर्क है कि हम अली वाले हैं, तुम हाकिम शाम वाले हो। हमको कमर लगाते हुए लोग देख के डरते हैं, हालांकि हम अपना खून अपने हाथों से बहाते हैं ना। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी कुर्बानी को देख के डरते हैं, हमारे तकवे को देख के डरते हैं। तुम हाथ से जो डरते हैं वो तुम्हारे खुद कुछ हमलों की वजह से डरते हैं, हमारी दहशतगर्दी की वजह से डरते हैं। और सलावत हमसे डरने वाले मैंने बात को तमाम किया। पैगंबर फरमाया इन्नल हुसैना मिसबाहुल खुदा व सफीनतुन नजात, मेरा हुसैन हिदायत का चिराग है और सफीना नजात है। मेरे ख्याल में ये बात आपको बताने की जरूरत नहीं है कि जिसको दुनिया में हिदायत मिलती है उसे इज्जत मिलती है, और जिसको आखिरत में नजात मिलती है उसे जन्नत मिलती है। पैगंबर बताना चाहते हैं कि हुसैन को छोड़ के न दुनिया में इज्जत मिल सकती है न आखिरत में जन्नत मिल सकती है। हुसैन को छोड़ दिया तो न इज्जत मिलेगी न जन्नत मिलेगी। हुसैन सफीना नजात का नाम, हुसैन सफीना नजात का नाम, नजात देने वाले सफीने का नाम। जरा वो वक्त याद कीजिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। अल्लाह मजलिसी ने बिहार रहमान में तहरीर फरमाया है कि अल्लाह की बारगाह में मसरूफ इबादत फरिश्ता फितरुस जब अल्लाह ने अर्श बनाया और कहा कि ये अजीम है, तो उसने कहा कि मैं देखना चाहता हूं कि तूने कितना बड़ा अर्श बनाया है। अल्लाह ने उसे 70,000 बालों पर और अता कर दिए, या यूं समझें कि उसकी कुव्वत परवाज में 70,000 गुना और इजाफा कर दिया, लेकिन एक पाया अर्श से दूसरे पाया अर्श तक न पहुंच पाया था। देखिए अजीजों, अब शुरा बैठे हुए हैं, अब जो पैगाम देना थे वो दे चुके। अब मैं चाहता हूं कि मजलिस हो जाए, पूरी तवज्जो के साथ आप समाज फरमाए, आमादा हो जाए फजाइल सुनने के लिए। बड़ी अहम बात मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। अल्लाह ने 70,000 बालों पर उसे और अता कर दिए। एक पाया से दूसरे पाया तक न पहुंचने पाया था कि सदा ये मिली के बालों पर जब्त हो गए। एक गोश्त के लोथड़े की शक्ल में जमीन पर गिरा। आदम आए चले गए, नूह आए चले गए, इब्राहिम आए चले गए, मूसा आए चले गए, ईसा आए चले गए, पैगंबर की विलादत हो गई, लेकिन फितरुस अपनी हालत में रहा। ये अंडर कंसिडरेशन नहीं था, समझ रहे हैं? जैसे जेल में कुछ वो होते हैं जो अंडर कंसिडरेशन होते हैं, ये विचाराधीन कैदी नहीं था, वो सजा याफ्ता कैदी था। अब ये सजा याफ्ता कैदी था, सजा याफ्ता था। अल्लाह ने सजा दी थी, पड़ा हुआ था। जिब्राइल ने कहा कयामत नहीं, सुल्तान ने कहा कयामत नहीं आई है, इमामत आई है, इमामत आई है। अब आप समझे कि जितनी फोरकास्ट होती है, किसी ने कहा साहब 2012 में कयामत आ जाएगी, इससे पहले किसी ने कहा 2004 में कयामत आ जाएगी, किसी ने कहा 2006 में कयामत आ जाएगी, किसी ने कहा 10 अक्टूबर को कयामत आ जाएगी, किसी ने कहा 15 दिसंबर को कयामत आ जाएगी। सारी दुनिया में हलचल मच जाती है, लेकिन हम हैं जो मुतमईन बैठे रहते हैं, इसलिए कि हमें मालूम है कि अभी इमामत नहीं आई तो कयामत नहीं आई। जिब्राइल ने कहा कि इमामत आई है, कयामत नहीं आई। क्या हुआ? का हुसैन इब्न अली की विलादत हुई है, बीबी फातिमा ज़हरा के बेटे की विलादत हुई है, रसूल के नवासे की विलादत हुई है। तो फितरुस ने कहा कि क्या अच्छा हो कि मुझे भी ले चलो। तो जिब्राइल ने कहा कि इजाजत लूं तो ले चलो। तो पैगंबर इस्लाम के पास आए, इजाजत ली, फितरुस को लेकर पैगंबर की खिदमत में हाजिर हुए। पैगंबर की खिदमत में हाजिर हुए। अजीजों आए, कहाँ आए? बस में इस्मत में आए, बस में इस्मत में आए। तवज्जो फरमाइए आपने। कुछ लोग कहते हैं आपने फर्श अज़ा को मुजरिमों की पनाहगाह बना दिया है। आप मुझे बताइए, ये तो फर्श अज़ा है, वहां बस में इस्मत है। जिसका घर है वो भी मासूम, जो बच्चा पैदा हुआ वो भी मासूम, बच्चे का बाबा भी मासूम, बच्चे की माँ भी मासूम, बच्चे का बड़ा भाई भी मासूम। एक जुमला कहूं कि घर की फिजा में इस्मत ऐसे रची फसी है कि तमीज़ भी कुरान से गुफ्तगू करती है। ऐसे घर में फितरुस को आने की इजाजत मिली। फितरुस आया, जब फितरुस आया तो आने के बाद फितरुस ने पैगंबर से कहा मेरी खता भी माफ हो सकती है। पैगंबर ने कहा जाओ जाके अपने को हुसैन इब्न अली से मस कर लो।
किससे मस कर लो? हुसैन इब्न अली से मस कर लो। देखिए मैं भूला नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं। ये उलमा बैठे हुए हैं बखार ये बात को समझ रहे हैं। अलम में किसी ने यही लिखा है, जो लिखा है वही पढ़ रहा हूं, समझ रहे हैं? मैं भूला नहीं हूं जो आप सोच रहे हैं। रसूलुल्लाह ने क्या कहा? जाओ अपने को हुसैन इब्न अली से मस कर लो। ये नहीं कहा झूले से मस कर लो, ये कहा जाओ जाके अपने को हुसैन इब्न अली से मस कर लो। लेकिन जब फितरस चला तो अपने को इमाम हुसैन से नहीं मस किया, बल्कि अपने को इमाम हुसैन के गहवारे से मस किया, झूले से मस किया, झूले से मस किया। अब जब झूले से मस किया तो फितरस को बालों पर मिल गए, फितरस को बालों पर मिल गए। अब कोई फितरस से पूछे कि तुमने अपने को हुसैन से क्यों नहीं मस किया, झूले से क्यों मस किया? अब यहाँ पर एक नुक्ता बोलते हैं। अब वो कहते हैं कि बहरहाल फितरस गुनाहगार था, फितरस गुनाहगार था और इमाम हुसैन साहिब इस्मत थे, साहिब आए ततीर थे, लिहाजा अपने को इमाम हुसैन से कैसे मस करता, लिहाजा अपने को इमाम हुसैन से दूर रखा। बहरहाल जिसका नुक्ता है अल्लाह उसे जज़ाए खैर अता करे। मैं तो ये बात हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई ज़ाकिर कोई आलिम कोई नुक्ता पेश करे तो ये सोच के तारीफ न किया कीजिए कि ये फज़ाइल आले मोहम्मद की हद है, बल्कि ये समझ के तारीफ किया कीजिए कि इसने यहाँ तक समझा। जुमले हैं वो लोग पढ़ते ही नहीं हो, बयान ही नहीं करते, अपने मतलब की बातें बयान कर देते, इसीलिए बड़े कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। आपको मालूम है आगा खुमैनी ने बीबी फातिमा ज़हरा सलावतुल्लाह सलाम अलैहा के तस्वीर करते हुए एक जुमला फरमाया था, बड़े क़यामत का जुमला है। अगर आपने महसूस कर लिया जब मेरे नुक्तों पर इस्तेदाद दे रहे हैं तो उनके नुक्ते को आप किस तरह सुनेंगे। अब यही देखना है कि उन्होंने कहा कि बीबी फातिमा ज़हरा के सिलसिले में, बीबी फातिमा ज़हरा के सिलसिले में ये नहीं फरमाया था, ये नहीं फरमाया कि शुआरा ने तो शेर कहे हैं, ज़ाकिरीन ने तो नुक्ते निकाले हैं, खुतबा ने तो कोशे निकाले हैं, ये नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने कहा कि बीबी फातिमा ज़हरा के सिलसिले में जो मासूमीन से हदीसें वारिद हुई हैं वो हमारे फहम के मुताबिक है, उनकी फजीलत के मुताबिक है। जितना हम समझ सकते हैं वही तो हमें बताया गया है ना, समझ रहा? तो कभी ये ना सोचा कि बस हमने तो ये सुना था फुला ज़ाकिर से, अब उस ज़ाकिर से हमें अकीदत थी, लिहाजा अब उससे आगे बढ़ के कोई बयान कर रहा है तो हुलू हो रहा है। ये मसला नहीं है, ये मसला नहीं है। कुल्ला यौमन हुआ फी शान, क्या सुना मैंने क्या अर्ज कर गया? अल्लाह की हर आन एक नई शान है और उस शान के मज़हर अहले बैत हैं। कोशे के बाद कोशा निकलता है, तभी तो पहलू के बाद पहलू निकलता है, तभी तो नुक्ते के बाद नुक्ता निकलता है। वरना पहुंच चुके अल्लामा सिद्दीक़ हसन साहब, अब मुसल्लम क्या पढ़ेगा? एक सलावत पढ़े आप अच्छा कहना, शेर कह चुके अली सदवी, अब कोई दूसरा शेर क्या कहेगा? कहना ये मसला नहीं है, अल्लाह की हर रोज एक नई शान है, समझ रहे हैं? और उसकी शान के मज़हर अहले बैत है, समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि अहले बैत की फजीलत के गोशे रोजाना निकला करते हैं। तो बहरहाल गोशा ये निकाला गया कि फितरस ने अपने को इमाम हुसैन से इसलिए नहीं मस किया कि हुसैन साहिब आए तथहीर थे, वो गुनाहगार था, अपने को कैसे मस कर लेता। लेकिन अभी तो ये बात बड़ी समझ में नहीं आती, सुनिएगा तो मैं अर्ज कर रहा हूं, ये बात बड़ी समझ में नहीं आती। आप कहेंगे क्यों समझ में नहीं आती? अब सुनिए जुमला अर्ज कर रहा हूं। बात इसलिए समझ में नहीं आती कि इमाम हुसैन की तहारत आबे कलील वाली तहारत नहीं है, दरियाओं और समंदरों वाली तहारत है। नहीं होगी हुसैन की तहारत, इमाम हुसैन की तहारत आबे कलील वाली तहारत नहीं, दरियाओं और समंदरों वाली तहारत है। अकीदा है कि वो गुनाहगार अगर अपने को इमाम हुसैन से मस करने का इरादा करता तो मस होने से पहले उसे बालों पर मिल जाता और पास दिया जाता तब हुसैन से मस होता। लेकिन फितरस ने अपने को गहवारे से मस किया, झूले से मस किया। आइए फितरस से पूछे कि तूने अपने को झूले से क्यों मस किया, गहवारे से मस करके बालों पर क्यों नहीं हासिल किए? हो सकता है फितरस जवाब दे, अगर मैं अपने को हुसैन से मस करके बालों पर हासिल करता तो
सबक न मिलता। जिस तरह से हमारे शर्मा जी जिक्र अहले बैत सुन रहे हैं, मेरा दिल चाहता है काश इन शर्मा जी को देख के मुसलमान भी शर्मा जाए। जवाब दे के तुम्हें सबक न मिलता, यानी हमें बालों पर तो मिल जाते मगर तुम्हें सबक न मिलता। आमादा है मैं बर्दाश्त करूं या तुम्हें सबक न मिलता? क्या सबक न मिलता? हो सकता है फिर जवाब दे के नबी ने फरमाया था कि मेरा हुसैन हिदायत का चिराग है और सफीना निजात है। अगर मैं हुसैन से बस करके बालों पर हासिल करता तो मैं ये देख रहा था कि हुसैन का ये जिस्म कायनात में बज़ाहिर 57 बरस रहने वाला है। अगर मुझे बालों पर मिलते तो दुनिया तक पैगाम जाता कि हुसैन हो तो निजात मिले। मैंने अपने को कहवाए समझ कोई चीज हुसैन से मंसूर हो सारी कायनात इमाम हुसैन की, सारी कायनात बीबी ज़ैनब की है। कायनात मैं जमीन की बात नहीं कर रहा हूँ, सारी कायनात अल्लाह की सारी मखलूक नहीं के लिए। लेकिन बहरहाल ये इलाका मंसूब है बीबी सैयदा ज़ैनब से, लिहाजा यहाँ ये बात मैं कहूंगा तो कहाँ कहूंगा अजीजों। अब इसी नुक्ते को जरा बदल के आपके सामने अर्ज करूं ताकि आप मसाइल की तरफ भी आमादा हो जाए। पूरी तवज्जो आप हज़रात की चाहता हूँ कि भाई अगर लकड़ी का गहवारा हुसैन को अपनी गोद में ले ले तो ऐसा साहिब इख्तियार हो जाए, ऐसा साहिब इख्तियार हो जाए कि फित्र उसको बालों पर अता कर दे, तो जिसको हुसैन अपनी आगोश पे पाले अगर वो बाबुल हवाए जो बाबुल मुराद कहलाए। समझ में आई आपकी क्या बात? अजीजों, लोग कहते हैं साहब आप हजरत अब्बास से मांगते हैं, अहले बैत से मांगते हैं, एक जुमला कहा जाता है कि ये गैरुल्लाह से मांगते हैं। देखिए अजीजों, गैरुल्लाह का कॉन्सेप्ट ही लोगों ने गलत पेश किया। गैरुल्लाह वो नहीं है जो बेदून अल्लाह हो, बल्कि गैरुल्लाह वो है जिसे अल्लाह के मुकाबले पर लाया जाए, जिसे अल्लाह के मुकाबले पर लाके उससे मांगा जाए। हम जो अहले बैत से मांगते हैं वो इसलिए मांगते हैं कि उसने कहा है कि इनसे मांगो तो मांगो। समझ रहे हैं? और जो हजरत अब्बास बाबुल हवाइज है, बाबुल मुराद है, हमारे
بھائی نیر جلال پوری صاحب نے کہا تھا کہ آپ اگر چاہیں تو کچھ شعر بھی پڑھ دیں، لہذا بس 4 مصرع میں ملاحظہ فرمائیں عزیزوں سرکار باب الحوائج کے سلسلے میں کہ یہ عزت و دولت کوئی سی جاہ نہ دے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مولا ہے جس کے دل میں بنایا ہے کہیں کا رہنے والا انشاءاللہ خاموش نہیں رہے گا کہ یہ عزت و دولت کوئی سی جاہ نہ دے گا، وہ عباس جو دے دیں گے کوئی شاہ نہ دے گا۔ یہ عزت و دولت کوئی سی جاہ نہ دے گا، وہ عباس جو دے دیں گے کوئی شاہ نہ دے گا، اور خود اس نے بنایا ہے انہیں باب حوائج، اور ان سے نہیں مانگو گے تو اللہ نہ دے گا۔ ہم نے نہیں بنایا، خود اس نے بنایا ہے انہیں باب حوائج، ان سے نہیں مانگو گے تو اللہ نہ دے گا۔ بس مجلس تمام اس سرکار قمر بنی ہاشم عزیزوں کربلا کے میدان میں حسین کا بھروسہ عباس، چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھروسہ عباس۔ عزیزوں میں مسائل کے آغاز کے لیے مجھے نہیں معلوم کہ شاعر کا نظم کیا ہوا یہ نوحہ ہے، لیکن ہمارے گھر کی خواتین ایام ازاں میں یہ نوحہ پڑھتی چلی آ رہی ہیں، ہم نے اپنے بچپن سے سنا ہے، اور جو لکھنؤ کے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بھائی حیدر صاحب اور دیگر حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں، میرے خیال میں ان کے کانوں میں یہ نوحہ ضرور کیا ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کبھی غور نہ کیا ہو۔ چیزوں کیا کیفیت ہے مطلب ہے کہ دریا پہ پانی لینے کو عباس جاتے ہیں۔ اب دیکھیے عزیزوں جو بھی شاعر ہو دوسرا مصرع کیا غضب پہ رکھ دیا، قسم خدا کی احساس ہو جائے تو کلیجہ پھٹ جائے۔ کہتا ہے دریا پہ پانی لینے کو عباس جاتے ہیں اور سب بچے مل کے خیمے کا پردہ اٹھاتے ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیں عزیزوں اور سوچیں کہ کیا تشنگی ہے قسم خدا کی کہ حضرت عباس دریا میں پانی لینے کے لیے جاتے تو چھوٹے چھوٹے بچے پردہ اٹھاتے ہیں۔ حضرت حضرت عباس سب کا بھروسہ۔ بس مجلس تمام ہو رہی ہے عزیزوں، آپ ذرا اندازہ لگائیں، بس بھائی بہن کی گفتگو ہو مجلس تمام، لیکن کربلا کے میدان میں امام حسین نے مختلف موقعوں پر مختلف شخصیتوں کو آواز دی۔ صاحب مالی سبلہ نے لکھا ہے کہ جب جناب قاسم کو امام حسین نے رخصت کیا ہے تو امام حسین خیمے میں جناب قاسم کو لے کے آئے، کہا بہن زینب ذرا تبرکات کا صندوقچہ لے کے آؤ۔ لیکن رو لیجیے عزیزوں، مجلس صرف رونے کے لیے منعقد کی جاتی ہے۔ کہا بہن زینب ذرا تبرکات کا صندوقچہ لے کے آؤ۔ جناب زینب تبرکات کا صندوقچہ لے کے آئی۔ امام حسین نے اس صندوقچے کو کھولا اور سرکار سبز قبا کی مخصوص قبا نکالی، امام حسن کا وہ مخصوص امامہ نکالا، جناب قاسم کے سر پہ امامہ رکھا، قاسم کو قبا پہنائی، اور اس کے بعد 13 برس کے بھتیجے کے بغلوں میں دونوں ہاتھوں کو دیا، اور جیسے غدیر کے میدان میں رسول اللہ نے مولا علی کو اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا تھا، اس طرح سے جناب قاسم کو بلند کیا اور مدینے کی جانب دیکھ کے کہا بھیا حسن یہ ہے آپ کا قاسم۔ کہا بھیا حسن یہ ہے آپ کا قاسم۔ خدا آپ کو کسی کم میں نہ رلائے سوائے میں سرکار سید الفرواد آتے بھیا حسن یہ ہے آپ کا قاسم۔ عالم درجات عالی کرے حماد اہل بیت شہید محسن نقوی کے بڑے زبردست مسائل پڑھتے تھے عزیزوں، ان کا ایک جملہ زندگی میں رلانے کے لیے کافی ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ حسن کا یتیم کربلا کے میدان میں جب تک گھوڑے پر رہا قاسم رہا، زمین پہ آیا تقسیم ہو گیا۔ آپ نے محسوس کیا ہے جملے کو، جب تک گھوڑے پر رہا قاسم رہا، جب زمین پہ آیا تقسیم ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے بھتیجے کی لاش کے ٹکڑوں کو سمیٹا، ایک گٹری بنائی، وہ گٹری لے کے خیمے میں آئے۔ عزیزوں ابھی تک آپ کو معلوم ہے جب کسی شہید کا لاشا خیمے میں آتا تھا بی بی زینب نے اہتمام کیا تھا، جو بی بی اس کی وارث ہوتی تھی اس کو لاش کے قریب لا کے بٹھایا جاتا تھا۔ عزیزوں اگر ماں آتی تھی تو سراہنے بیٹھتی تھی، جب یادگی لے گا تب روئیے گا عزیزوں۔ اگر شہید کی ماں آتی تھی لاشوں پر تو سراہنے بیٹھتی تھی، اگر بیٹی آتی تھی تو پائیدی بیٹھتی تھی، اگر زوجہ یا بہن آتی تھی
तो पहलू में बैठती थी। अजीजों मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ अजीजों, जब भी किसी का लाशा आया, अगर माँ आई तो सराहने आके बैठी, अगर बेटी आई तो पायदी आके बैठी, अगर बहन या रोजा आई तो पहलू में आके बैठी। आदिदो इमाम हुसैन 13 बरस के कासिम का लाशा लेके आए। आदिदो ये तो मिला तारीख में कि माँ आई, लेकिन आप मुझे बताएं कि ये माँ कहाँ बैठी, सराहने बैठी है, पायदी बैठी? इमाम हुसैन लाश के टुकड़े लेके आए हैं, एक कच्ची सी लेके आए हैं। आदिदो यहाँ पर भी एक जुमला मिला कि अभी कुछ देर पहले इमाम हुसैन ने मदीने की तरफ रुख करके कहा था, भैया हसन ये है आपका कासिम। अब इमाम हुसैन ने फिर उस कच्ची को अपने हाथों में उठाया, मदीने का रुख किया, आवाज दी, भैया हसन ये है आपका कासिम। जनाब कासिम की शहादत के वक्त इमाम हुसैन ने इमाम हसन को पुकारा। जब हजरत अब्बास को कटे हुए बाजू उठाए तो उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किसको पुकारा? का उस वक्त कूफे की जानिब देखा, नजफ की जानिब देखा और आवाज दी, बाबा बाबा मेरे बाबा, यही वो बाजू हैं जो आपने किसी रमजान की रात को कूफे में हमारे हवाले किए थे और कहा था, भैया अब्बास तुम हुसैन से खबरदार रहना, मेरे हुसैन तुम अपने छोटे भाई में खबरदार रहना। ये बाबा वो बाजू काट दिए गए, वो हाथ कलम कर दिए गए। इसका मतलब ये हुआ कि हजरत अब्बास के जब हाथ उठाए तो मौला अली को पुकारा। जब हजरत अली अकबर का लाशा ना उठ रहा था तो फिर क्या कहा? आले हज़रत मरहूम कहते हैं कि इमाम हुसैन ने अली अकबर की पुश्त के नीचे दोनों हाथों को लगाया, लाशों को उठाने की कोशिश की, नजफ की जानिब देखा, आवाज दी, मुश्किल कुशा अली, मेरे हाजत रवा अली, अरे करियर जवा की लाश उठाता हूँ यार। अली अकबर का लाशा उठाया, आज तो और मोहम्मद के लाशें उठाए, मदीने की तरफ देखा, अम्मा हम ज़ैनब के बच्चों के लाशें उठा रहे हैं। कभी अम्मा को पुकारा, कभी नाना को पुकारा, कभी बाबा को पुकारा, कभी भैया को पुकारा। लेकिन जब इमाम हुसैन पर करबला में सबसे सख्त वक्त आया, वो कौन सा मौका था? कि जब 6 महीने के बच्चे को कब्र में लिटा रहे थे, तो उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीने का रुख करके नाना को नहीं पुकारा, नजर की जानिब देख के बाबा को नहीं पुकारा, अम्मा को आवाज नहीं दी, भैया हसन को नहीं पुकारा, बल्कि दरिया की जानिब देखा, भैया भैया तुम रुखसत हो गए, हम अकेले रह गए। खुदा आपको किसी को मैंने लड़ा इस बात में सरकार से तो शोर आ गए, बस अभी तो मैंने मजलिस को तमाम किया। अजीजों बड़े पाए आलिम थे मौलाना शब्बीर हसन नजफी साहब कल्ला, आप हज़रात वाकिफ होंगे, मशहद मुक़द्दस में रहते थे, मुसलसल होते आखिरी में मजलिस से पढ़ते थे। उन्होंने एक मजलिस को बयान किया, बस उसको बयान कर दूं, मजलिस तमाम है। उन्होंने लिखा कि चूंकि मौला अली ने बीबी ज़ैनब से फरमाया था, बीबी के दयाल में आप बैठे हुए सोच के सुनिएगा कि बीबी ज़ैनब से फरमाया था कि बेटी ज़ैनब करबला के मैदान में तुम्हारे सर से चादर छीनी तुम्हारे सर से चादर छीनी जाएगी। जब से करबला की सरजमीन पे आई, जब भी कोई रिसाला आता था, करबला की जमीन किताबों से लरसती थी, तो बीबी ज़ैनब पूछती थी कौन आया? कभी मालूम होता था शिब्र आ गया, तो जनाब ज़ैनब अपनी चादर संभाल लेती थी। कभी मालूम होता था कि उमर अपने साथ आ गया, तो बीबी ज़ैनब अपनी चादर पकड़ लेती थी। कभी मालूम होता था कि खूनी अपने लश्कर लेके आ गया, बीबी ज़ैनब अपनी चादर पकड़ लेती थी। कभी मालूम हुआ हसीन इब्न नबीर आ गया, ज़ैनब घबराती थी। अब जो हुसैन ने बहन की ये बेकसी देखी, कहा बहन क्या बात है? कहा भैया हर बार मुझे ऐसा लगता है कि वो वक्त तो नहीं आ गया जब मेरी चादर छिनेगी। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक अलम सजाया और वो अलम बीबी ज़ैनब के खेमे के सामने रख दिया और ये फरमाया, बहन ज़ैनब जब तक ये अलम सजा रहे, ये समझना कि तुम्हारी चादर सलामत रहेगी। अब अभी कोई भी लश्कर आता था, ज़ैनब उस अलम को देख लेती थी, अलम मौजूद है, मेरी चादर सलामत है। आज लोग करबला के मैदान में अली अकबर ने ऐलान दी, ज़ैनब ने देखा अलम अपनी जगह पे है, करबला
सर से चादर छीन दो। वरदिगार जो वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। वरदिगार जो वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद के तमाम हाज़रीन मजलिस और बानियान मजलिस के दिली मकासद की तकमील फरमा। वरदिगार जो वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमको अमाल सालिहात की तौफीक इनायत फरमा। और वरदिगार हमारे अकायद को सही सारी जब तक जिंदा रहें आले मोहम्मद की मोहब्बत और उनके दुश्मनों की अदावत को जिंदा रहें और दुनिया से जाएं तो ये दोनों अजीम तरीन नेमतें अपने साथ हैं। वरदिगार जो वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इस ज़ियारत को आखिरी ज़ियारत न करार दे, हमें बार बार बारगाह में आने का शरफ मिलता रहे। और वरदिगार जो वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद जितने हज़रात यहाँ बैठे हुए हैं और जो अभी करबला मोहल्ला की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, परवरदिगार उनको भी ये ज़ियारत नसीब हो और जो हज़रात करबला नहीं जा रहे हैं वापस जा रहे हैं वो भी जल्द अज जल्द इंशाअल्लाह करबला में सरकार रसीद शुहदा की ज़ियारत से मुशर्रफ। वरदिगार जो वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हम इसी तरह हर साल यहाँ पर अरबईन में आते रहें और बीबी की खिदमत में पुरसा पेश करते रहें। अब वरदिगार जो लोग ये चाहते हैं कि अज़ादारी का ये सिलसिला खत्म हो जाए उनको नेस्त नाबूद फरमाए। वरदिगार जल्द अज जल्द वारिस खून हुसैन हमारे इमाम ज़माना का ज़हूर साहब अंसार हमारा शुमार। हज़रात आपसे गुजारिश है एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के रज़ा अब्बास रिज़वी इब्न सैयद मोहम्मद अकील रिज़वी और जनाब नायाब अलावी साहब के वालिदैन, जनाब आमिर साहब के वालिदैन और आपके जितने मुतल्लिक़ीन यानी जुमला मोमिनीन व मोमिनात की अरवाह और हमारे हसन अली साहब के वालिदैन, शौकत साहब के वालिदैन जितने मोमिनीन हैं